डियर स्टूडेंट्स, आज का जो हमारा टॉपिक है, एक्चुअली दिस वेरी टॉपिक इज वेरी इंपॉर्टेंट फॉर बोथ 11th 12th as well as for those students preparing for various entrance examinations. We will start. The heading of the topic is types of organic reactions. Types of organic reactions. Organic reactions are of various types. One is substitution reaction, addition reaction, elimination reaction, rearrangement reactions, condensation reactions. And also there are isomerization reactions, polymerization reactions, pericyclic reactions. But these very five are very important from NEET, JEE entrance examination point of view. These five types of reactions. If we will get the time, we will discuss other three types of reactions, that is polymerization, isomerization and pericyclic. Now dear students, we will start from the first type of reaction, that is substitution reaction. Dear students, मैट्रिक में जो आप लोगों का 10th क्लास था वहां पे आप लोगों ने डिस्कस किया है व्हाट इज ए सबस्टिट्यूशन रिएक्शन, और वहां पे हम डिस्कस कर रहे थे डिस्प्लेसमेंट रिएक्शंस. फॉर एग्जांपल मेरे पास x एंड y एक रिएक्टेंट है, मैंने इसको ट्रीट किया z के साथ. x and y is a reactant, z is the attacking reagent. जो attacking reagent, for example it is an electrophile, it is a nucleophile. z ने रिप्लेस किया y को, जब z रिप्लेस करता है y को, there is the formation of xz plus y. This is the example of a substitution reaction. A substitution reaction is a reaction in which one element or one substance replaces or displaces or substitutes another substance या another element. यहाँ पे Z ने substitute किया Y को, उसी की जगह ले ली और Z Y यहाँ से बाहर निकल गया. This is the simple example of a substitution reaction. Now dear students, substitution reactions are of three types. One is free radical substitution reaction. अगर फ्री रेडिकल सब्स्टिट्यूशन मीन्स जो स्पीशी, जो एलिमेंट सब्स्टिट्यूट हो रहा है, इट इज ए फ्री रेडिकल. फॉर एग्जांपल एक्स डॉट, अगर एक फ्री रेडिकल ने दूसरे फ्री, फॉर एग्जांपल यहाँ पे जेड एक फ्री रेडिकल है, उसने वाई फ्री रेडिकल को रिप्लेस किया, सब्स्टिट्यूट किया, उसे हम कहेंगे फ्री रेडिकल सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन. अगर वो अटैकिंग रिएजेंट न्यूक्लियोफाइल है, एक न्यूक्लियोफाइल ने दूसरे न्यूक्लियोफाइल को रिप्लेस किया, सबस्टिट्यूट किया, तो न्यूक्लियोफिलिक सबस्टिट्यूशन रिएक्शन. अगर वो अटैकिंग रिएजेंट Z के बदले इलेक्ट्रोफाइल है, एक इलेक्ट्रोफाइल ने दूसरे इलेक्ट्रोफाइल को रिप्लेस किया, सबस्टिट्यूट किया, तो हम कहेंगे इलेक्ट्रोफिलिक सबस्टिट्यूशन रिएक्शंस. दिस वी विल डिस्कस दीज वेरी टाइप्स ऑफ ऑर्गेनिक रिएक्शंस वन बाय वन. Both this very topic is important for 11th as well as for 12th class. Dear students, in case of 12th class, we are discussing the preparations of haloalkanes. We have discussed two preparations, one from alcohols and another from alkenes. Now, here in this very case, we will also discuss the preparations of haloalkanes from alkanes, means saturated hydrocarbon से हम haloalkane की preparation कर लेंगे. उसके साथ साथ मैं वहां पे आप लोगों को कहूंगा this very topic is also important for 11th class. वहां पे halogenation of alkane या free radical substitution reaction mechanism. शाबाश, यहाँ पे आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए. मैंने सबस्टिट्यूशन रिएक्शन को एक्सप्लेन किया. आफ्टर दैट जब हम सबस्टिट्यूशन रिएक्शंस को कंप्लीट कर लेंगे, पहले फ्री रेडिकल, उसके बाद न्यूक्लियोफिलिक, उसके बाद इलेक्ट्रोफिलिक, फिर हम एडिशन रिएक्शन पे आ जाएंगे. एडिशन रिएक्शन कंप्लीट कर लेंगे तो इन रिएक्शंस पे हम आ जाएंगे. हाँ, शाबाश. नाउ इसका आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए. शाबाश. नाउ डियर स्टूडेंट्स, एक्चुअली जो आज का हमारा टॉपिक है, इट इज द प्रेपरेशंस ऑफ haloalkanes. यहां पे मैं 3 हेडिंग्स लिखूंगा. प्रेपरेशन ऑफ RX from
alkenes are halogenation of alkenes. One of the chemical property of alkenes in case of the unit hydrocarbons, which is in 11th class, are free radical substitution reaction, free radical substitution reaction. 3 headings. This preparation is of alkyl halides. RX is alkyl halide. General formula for alkyl from alkenes. ये 12th के syllabus में है, as well as in the syllabus of JEE NEET. ये 11th. Both are types of organic reactions. 11th class में and हाइड्रोकार्बन्स में हेलोजिनेशन ऑफ एल्केन्स एक केमिकल प्रॉपर्टी है. 3 चीजें एक साथ यहां पे हम डिस्कस कर लेंगे. शाबाश. लेट अस स्टार्ट. नाउ प्रिपरेशंस ऑफ अल्काइल हैलाइड्स फ्रॉम एल्केन्स. एक फेमस रिएक्शन है डियर स्टूडेंट्स, एक फेमस रिएक्शन है हेलोजिनेशन ऑफ एल्केन्स. शाबाश. वहां पे हेलोजिनेशन ऑफ मीथेन. It has been found that when methane is treated with chlorine in the presence of sunlight, या हम डिनोट करते हैं H nu के फोटॉन, H nu से. At that very time, it has been found that there is the formation of CH3Cl plus HCl. यहाँ पे फ्री रेडिकल मैकेनिज्म होता है, मैं ये भी दिखाऊंगा. लेकिन डियर स्टूडेंट्स, remember that when alkanes, CH4 is an alkane, is treated with halogens, for example chlorine, in the presence of sunlight, there is the formation of alkyl halide, RX. R denotes here the methyl group, X denotes as the chlorine. शाबाश. But it has been found that यहाँ पे रिएक्शन यहीं पे स्टॉप नहीं होती है. This is the main drawback of the reaction. When alkanes are treated with any halogen, multiple products are formed. यहाँ पे क्या है, जब हमने क्लोरीन के साथ CH4 को ट्रीट कराया, CH3Cl, उसके बाद फिर से यहाँ पे क्लोरीन मॉलिक्यूल तो रिएक्शन में प्रेजेंट होगा. ये क्लोरीन मॉलिक्यूल फिर से CH3Cl के साथ रिएक्ट करता है, यहाँ से H को बाहर निकालता है और Cl रिप्लेस करता है H को. There is the formation of CH2Cl2 plus HCl. फिर से यहाँ पे Cl2 रिएक्ट करता है यहाँ इसके साथ, CH2Cl2 के साथ. यहां से एक H बाहर निकलता है और एक Cl यहाँ पे रिप्लेस हो जाता है, मतलब हाइड्रोजन को रिप्लेस करता है Cl, और फिर से CH3Cl प्लस यहाँ पे HCl. उसके बाद ये CH3Cl3 फिर से Cl2 के साथ रिएक्ट करता है, यहाँ पे हाइड्रोजन रिप्लेस हो जाता है Cl से. There is the formation of CCl4 plus HCl. मीन्स यहाँ पे 4 प्रोडक्ट्स की फॉर्मेशन हो जाती है when methane reacts with chlorine, and it has been found that इनका जो बॉइलिंग पॉइंट है ऑलमोस्ट सिमिलर है, उतनी ज्यादा डिफरेंस नहीं है. दैट इज व्हाई वी आर नॉट इन ए पोजीशन टू सेपरेट देम इजीली, एंड दैट्स व्हाई दिस इज नॉट द एफिशिएंट मेथड for the preparation of alkyl halides. In this very case, the mechanism is free radical mechanism. यहाँ पे क्या हो जाता है, with the help of sunlight, मैं भी mechanism दिखाऊंगा. With the help of sunlight, क्लोरीन का फ्री रेडिकल यहाँ पे जनरेट हो जाता है, और यहाँ पे भी फ्री रेडिकल हाइड्रोजन का जनरेट हो जाता है. वो हाइड्रोजन का फ्री रेडिकल, क्लोरीन का फ्री रेडिकल, CH3 का फ्री रेडिकल, Cl का फ्री रेडिकल एक दूसरे के साथ रिएक्ट कर पाते हैं. देयर इज द फॉर्मेशन ऑफ CH3Cl. आफ्टर दैट यहाँ पे भी फ्री रेडिकल मैकेनिज्म है, यहाँ पे भी फ्री रेडिकल मैकेनिज्म है, यहाँ पे भी फ्री रेडिकल मैकेनिज्म है. यहाँ पे कार्बन टेट्राक्लोराइड, दिस इज नोन एज क्लोरोफॉर्म. CHCl3 is known as chloroform. This is known as carbon tetrachloride. This is known as dichloromethane.
This is known as methyl chloride. Shabash. This means when methane is treated with chlorine, methyl chloride, dichloromethane, chloroformine, carbon tetrachloride are the four products which are formed. शाबाश. Now यहाँ पे हम देख लेंगे, अभी मैंने आप लोगों को कहा एक तो प्रेपरेशन होती है अल्काइल हैलाइड की, किससे? एल्केन से. हेलोजिनेशन किसकी होती है? एल्केन की. अब फ्री रेडिकल मैकेनिज्म, इसका स्क्रीनशॉट दे दीजिए. शाबाश. नाउ यहां पे मैं दिखाऊंगा आप लोगों को कि फ्री रेडिकल मैकेनिज्म किस तरह से होता है. शाबाश. याद रख लीजिए डियर स्टूडेंट्स, विद रेस्पेक्ट टू फ्री रेडिकल मैकेनिज्म देयर मस्ट बी, या तो सनलाइट होनी चाहिए, या तो सनलाइट, या व्हाट वी कैन से हीट. इन द प्रेजेंस ऑफ हीट, बहुत ज्यादा हीट हम प्रोवाइड करते हैं इन द प्रेजेंस ऑफ peroxides. Remember that during the preparations of what we can say alkyl halides from alkanes, जहां पे हमने एंटी मार्कोनिकॉफस एडिशन रूल डिस्कस किया, वहां पे इन द प्रेजेंस ऑफ peroxides फ्री रेडिकल मैकेनिज्म होता है. टाइप्स ऑफ ऑर्गेनिक रिएक्शंस में हम फिर से वहां पे इलेक्ट्रोफिलिक एडिशन रिएक्शन में वहां पे पढ़ लेंगे, फ्री रेडिकल एडिशन रिएक्शन में उसका मैकेनिज्म फिर से पढ़ लेंगे. हाँ, शाबाश. डियर स्टूडेंट्स, इफ देयर इज द फ्री रेडिकल मैकेनिज्म, वहां पे या तो सनलाइट होनी चाहिए, या तो हीट, या इन द प्रेजेंस ऑफ peroxides. शाबाश. नाउ व्हाट इज द मैकेनिज्म? देख लीजिए डियर स्टूडेंट्स. Remember that when there is a free radical mechanism, there are main three steps. One is chain initiation, या initiation step. या chain initiation. In case of initiation, remember that we are discussing here our reactants are CH4 and Cl2. Cl2 पे इट इज Cl.Cl. जब इस पे लाइट पड़ जाती है, सनलाइट, यहां पे सनलाइट इसको ब्रेक करती है इनटू फ्री रेडिकल्स. देयर इज द फॉर्मेशन ऑफ Cl डॉट प्लस Cl डॉट. रिमेंबर दैट इनिशिएशन स्टेप में एक फ्री रेडिकल इनिशिएट हो जाता है, फॉर्मेशन उसकी हो जाती है. नाउ स्टेप सेकंड, दिस इज स्टेप फर्स्ट. स्टेप सेकंड इज प्रोपगेशन. प्रोपगेशन स्टेप में जो फ्री रेडिकल हमारा जनरेट हो जाता है, रिमेंबर दैट इन केस ऑफ क्लोरिनेशन ऑफ एन एल्केन, हियर द एल्केन इज CH4 मीथेन. यहां पे क्या हो जाता है प्रोपगेशन स्टेप में? CH4 इट इज CH3H प्लस ये Cl डॉट जो इनिशिएशन स्टेप में हमें जनरेट हुआ है, ये Cl डॉट रिएक्शन को प्रोपगेट करता है, आगे बढ़ाता है. यहां पे H डॉट बाहर निकलता है और यहां पे CH3 डॉट की फॉर्मेशन हो जाती है प्लस HCl. नाउ डियर स्टूडेंट्स, इन द फर्स्ट स्टेप ऑफ प्रोपगेशन, Cl डॉट जो इनिशिएशन स्टेप में जनरेट हुआ है, इसने फिर से फ्री रेडिकल की फॉर्मेशन की. किस फ्री रेडिकल की? CH3 मिथाइल फ्री रेडिकल की अब फॉर्मेशन हो गई है. Now, in the second step, this was the first step of propagation. Now, in the second step of the propagation, CH3 जो रेडिकल है, ये फिर से क्लोरीन मॉलिक्यूल पे अटैक करता है. हालांकि इनिशिएशन स्टेप में सनलाइट, विद द हेल्प ऑफ सनलाइट सीयर रेडिकल की फॉर्मेशन हो जाती है, लेकिन प्रोपगेशन स्टेप में सीयर रेडिकल मिथाइल रेडिकल की फॉर्मेशन कराता है फर्स्ट स्टेप में, और सेकंड स्टेप में मिथाइल रेडिकल वापस सीयर रेडिकल को ब्रेक करता है और सीएल मॉलिक्यूल को ब्रेक करता है और सीयर रेडिकल की फॉर्मेशन हो जाती है. नाउ ये CH3 रेडिकल और सीयर रेडिकल एक दूसरे के साथ रिएक्ट कर लेंगे, देयर इज द फॉर्मेशन ऑफ CH3Cl, फिर से यहां पे सीयर रेडिकल की फॉर्मेशन हो जाती है. नाउ डियर स्टूडेंट्स, यहां पे ध्यान दे दीजिए,
प्रोपगेशन स्टेप जो फर्स्ट था वहां पे CH3 रेडिकल की फॉर्मेशन हो गई। हाउ? Cl रेडिकल ने एल्केन पे अटैक किया, यहां पे एल्केन मीथेन है। नाउ इन द सेकंड स्टेप जो एल्केन का रेडिकल है इसने Cl मॉलिक्यूल पे अटैक किया और Cl रेडिकल की फॉर्मेशन कराई। नाउ डियर स्टूडेंट्स देख लीजिए यहां पे ये Cl रेडिकल रिएक्शन में फिर से मीथेन मॉलिक्यूल पे अटैक कर लेगा और मिथाइल रेडिकल की फॉर्मेशन हो जाएगी। ये मिथाइल रेडिकल फिर से क्लोरीन मॉलिक्यूल पे अटैक कर लेगा और क्लोरीन रेडिकल की फॉर्मेशन हो जाती है और अल्काइल हैलाइड की, मिथाइल हैलाइड की मतलब क्लोरोमीथेन की यहाँ पे फॉर्मेशन हो जाती है। जो यहां जब इनिशिएशन स्टेप और प्रोपगेशन स्टेप कंप्लीट हो जाता है। इन केस ऑफ क्लोरीनेशन ऑफ मीथेन फर्स्ट रिएक्शन जब हमें मिथाइल क्लोराइड या क्लोरोमीथेन की फॉर्मेशन हो जाती है। नाउ डियर स्टूडेंट्स यहां पे मैंने ये भी कहा Cl रेडिकल फिर से CH4 पे अटैक कर लेगा और CH3 रेडिकल की फॉर्मेशन हो जाएगी। CH3 रेडिकल क्लोरीन मॉलिक्यूल पे तब तक अटैक करता रहेगा जब तक इन दोनों में से या तो दोनों खत्म नहीं हो जाएंगे या एक खत्म नहीं हो जाएगा। नाउ रिमेंबर दैट फ्री रेडिकल मैकेनिज्म है, यहां पे लिखूंगा फ्री रेडिकल मैकेनिज्म। फ्री रेडिकल मैकेनिज्म कहां पे होता है? जब हम अल्काइल हैलाइड की प्रिपरेशन करते हैं एल्केन से। और एक कंसेप्ट यहां पे हम डिस्कस कर रहे हैं हेलोजिनेशन ऑफ मीथेन या हेलोजिनेशन ऑफ एल्केन्स, और उनका प्रिपरेशन ऑफ अल्काइल हैलाइड फ्रॉम एल्केन्स, हेलोजिनेशन ऑफ मीथेन, वहां पे फ्री रेडिकल मैकेनिज्म होता है। और टाइप्स ऑफ ऑर्गेनिक रिएक्शन के सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन का फर्स्ट स्टेप हम डिस्कस यहां पे कर रहे हैं। 3 टॉपिक्स एक साथ यहां पे डिस्कस कर रहे हैं। फ्री रेडिकल मैकेनिज्म में फर्स्ट इनिशिएशन स्टेप, सेकंड क्या होता है? प्रोपगेशन स्टेप, थर्ड इज टर्मिनेशन स्टेप। शाबाश। होता क्या है टर्मिनेशन स्टेप में? जो प्रोपगेशन स्टेप में हमें फ्री रेडिकल्स की फॉर्मेशन हो गई है वो रिएक्ट कर पाते हैं, बस वही रिएक्ट करते हैं। किस फ्री रेडिकल की यहाँ पे फॉर्मेशन हो गई है? एक तो Cl रेडिकल, एक तो CH3 रेडिकल। मीन्स यहाँ पे कितने रेडिकल्स है? 2। या तो Cl रेडिकल दूसरे Cl रेडिकल के साथ, ये भी पॉसिबिलिटी है, क्लोरीन मॉलिक्यूल की फॉर्मेशन हो जाएगी। या तो CH3 रेडिकल Cl रेडिकल के साथ रिएक्ट कर लेगा और CH3Cl की फॉर्मेशन हो जाएगी। या तो CH3 रेडिकल प्लस CH3 रेडिकल एक दूसरे के साथ रिएक्ट कर लेंगे और शाबाश इथेन की फॉर्मेशन हो जाती है। रिमेंबर दैट डियर स्टूडेंट्स, रिमेंबर दैट दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट। यहां पे माइनर प्रोडक्ट बहुत कम क्वांटिटी में इथेन की भी फॉर्मेशन हो जाती है, लेकिन हम ये रिएक्शन में नहीं दिखाते हैं। मैंने सिर्फ दिखाया when CH4 reacts with Cl2 CH3Cl plus HCl is formed। हाँ यहाँ पे हमें HCl की भी फॉर्मेशन हो जाती है, लेकिन रिमेंबर दैट अगर किसी एग्जाम में पूछा जाएगा what are the products which are formed during the chlorination of methane, एक तो CH3Cl यहाँ पे भी और यहाँ पे भी, HCl की भी फॉर्मेशन हो जाती है, ये भी पॉसिबिलिटी है, Cl2 की भी फॉर्मेशन हो जाएगी और इथेन की भी फॉर्मेशन हो जाती है। ये कहां पे हमने देख लिया? ड्यूरिंग द मैकेनिज्म, ये याद रख लीजिए। This was the first step of the chlorination of methane when methyl chloride was formed। याद रख लीजिए इनिशिएशन, प्रोपगेशन, टर्मिनेशन। टर्मिनेशन स्टेप में जितने भी फ्री रेडिकल्स एक दूसरे के साथ रिएक्ट कर, या तो खुद के साथ, या तो Cl के साथ, या Cl CH3 के साथ, या CH3 CH3 के साथ। हाँ शाबाश। प्रोपगेशन स्टेप में क्या हो जाता है? जो इनिशिएशन स्टेप में हमें फ्री रेडिकल की फॉर्मेशन हो गई है वही एल्केन के साथ रिएक्ट करता है और एल्केन का फ्री रेडिकल बनाता है। एल्केन फिर से जिसने उसको ब्रेक किया है उसी के मॉलिक्यूल को ब्रेक करता है। हाँ यहाँ पे ये Cl रेडिकल ने किसको ब्रेक किया? एल्केन ने। लेकिन एल्केन का फ्री रेडिकल फिर से क्लोरीन मॉलिक्यूल को इसका बदला लेता है यहाँ पे और फिर से क्लोरीन रेडिकल की फॉर्मेशन हो जाती है। क्लोरीन रेडिकल फिर से इस पे अटैक कर लेगा, फिर से ये क्लोरीन मॉलिक्यूल पे अटैक कर लेगा। शाबाश। दिस इज द मैकेनिज्म। फर्स्ट स्टेप का ये मैकेनिज्म है, इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए और
with respect to any entrance examination point of view, very important है फ्री रेडिकल मैकेनिज्म, या यहाँ पे हम किसकी प्रिपरेशन कर रहे हैं, अल्काइल हैलाइड की। हाँ, शाबाश। नाउ सेकंड स्टेप में देख लीजिए बेटा, सेकंड स्टेप में हमें क्या हो जाता था, यहाँ पे किस तरह से रिएक्शन हो जाती, देख लीजिए बेटा, देख लीजिए। जो सेकंड स्टेप मैंने कहा हेलोजिनेशन ऑफ एल्कीन में, हेलोजिनेशन ऑफ एल्कीन में मैं यहाँ पे लिखूंगा, मैंने कहा CH4 प्लस Cl2 गिव्स CH3Cl प्लस HCl। इसका मैंने मैकेनिज्म दिखाया किस तरह से CH3Cl की फॉर्मेशन हो जाती है, और उसके साथ साथ माइनर प्रोडक्ट इथेन भी हमें यहाँ पे मिलता है। इसके साथ हमने Cl2 को रिएक्ट किया, लेकिन वहां पे किसकी फॉर्मेशन हो जाती है, CH2Cl2 प्लस HCl। शाबाश। अब हम इसका मैकेनिज्म देख लेंगे। व्हेन CH3Cl रिएक्ट्स विद Cl2, यहां पे भी 3 स्टेप्स है, याद रख लीजिए। फिर से उसके बाद CH2Cl2 रिएक्ट्स विद Cl2, देयर इज द फॉर्मेशन ऑफ CHCl3 प्लस HCl, और CHCl3 के साथ और CCl4 प्लस HCl। हर एक का मैकेनिज्म, इन दो का मैकेनिज्म आप खुद फिर ट्राई कर लोगे, लेकिन इसका मैं मैकेनिज्म दिखाऊंगा। CH3Cl रिएक्ट्स विद Cl2। नाउ इसका मैकेनिज्म मैंने दिखाया, सेम यहां पे भी इनिशिएशन स्टेप में क्लोरीन रेडिकल की फॉर्मेशन हो जाएगी, क्योंकि CH3Cl के साथ Cl2। नाउ देख लीजिए, अब क्या हो जाएगा, ये Cl रेडिकल किस पे अटैक कर लेगा, इस पे अल्काइल हैलाइड पे। नाउ CH3Cl प्लस Cl रेडिकल, देख लीजिए डियर स्टूडेंट, यहां पे आप लोग, दिस इज द फर्स्ट स्टेप ऑफ प्रोपगेशन। ड्यूरिंग द हेलोजिनेशन ऑफ मीथेन CH4 के प्रोपगेशन फर्स्ट स्टेप में मैंने कहा H रेडिकल की फॉर्मेशन हो जाएगी, क्योंकि वहां पे CH4 था, चार CH बॉन्ड्स थे, लेकिन यहाँ पे CCl बॉन्ड भी है और 3 CH बॉन्ड्स भी है। हाँ, शाबाश। ना कौन सा बॉन्ड यहाँ पे ब्रेक हो जाएगा, क्योंकि Cl रेडिकल को किसी बॉन्ड को तो ब्रेक करना ही है। रिमेंबर दैट यहाँ पे H रेडिकल की फॉर्मेशन फिर से हो जाएगी। क्यों? क्योंकि इट इज मोर रिएक्टिव देन Cl रेडिकल। आर यू गेटिंग माय पॉइंट? हाँ, शाबाश। यहाँ तो ये रीजन है कि CCl bond is more stronger than CH bond. CCl bond is more stronger than CH bond. That is why CH bond यहाँ पे ब्रेक हो जाएगा, और किसकी फॉर्मेशन हो जाएगी, यहाँ पे CH2 डॉट Cl प्लस HCl। मीन्स यहाँ पे Cl रेडिकल ने फिर से अल्काइल हैलाइड को ब्रेक किया, प्रोपगेशन स्टेप में CH बॉन्ड को ब्रेक किया। नाउ यहां पे फिर से ये Cl रेडिकल पे बदला लेगा, उसके मॉलिक्यूल को ब्रेक कर लेगा। CH2 डॉट प्लस Cl सिंगल बॉन्ड Cl, ये रेडिकल CH2 डॉट Cl, शाबाश, Cl सिंगल बॉन्ड Cl को ब्रेक कर लेगा। नाउ यहां पे किसकी फॉर्मेशन हो जाएगी, Cl रेडिकल यहां पे आ जाएगा, शाबाश, एंड एक Cl रेडिकल बाहर निकलेगा, दैट इज CH2Cl2 प्लस Cl रेडिकल, शाबाश। यहां से Cl रेडिकल फिर से जनरेट हो गया, फिर से ये इस पे अटैक कर लेगा, CH2 डॉट Cl की फॉर्मेशन हो जाएगी, फिर से CH2 डॉट Cl क्लोरीन मॉलिक्यूल पे अटैक कर लेगा, और CH2Cl2 की फॉर्मेशन मींस डाइक्लोरोमीथेन की फॉर्मेशन हो जाती है। नाउ डियर स्टूडेंट्स, टर्मिनेशन स्टेप में क्या हो जाएगा, कौन कौन सा फ्री रेडिकल, Cl रेडिकल और CH2Cl2। ये Cl रेडिकल फिर से किसी Cl रेडिकल के साथ रिएक्ट कर लेगा और क्लोरीन मॉलिक्यूल की, हालांकि रिमेंबर दैट यहाँ पे ये एक ही Cl रेडिकल की फॉर्मेशन नहीं हो जाती है, यहाँ पे बहुत सारे होते हैं। दैट इज वाई एक Cl रेडिकल, हम पॉसिबिलिटी ये भी दिखा सकते हैं, एक Cl रेडिकल दूसरे Cl रेडिकल के साथ रिएक्ट कर लेगा। यहाँ CH2 रेडिकल Cl प्लस Cl रेडिकल CH2Cl2 की फॉर्मेशन हो जाएगी, या तो CH2 रेडिकल Cl प्लस CH2 रेडिकल Cl, शाबाश। यहाँ पे CH2Cl ये माइनर क्वांटिटी में होगा, लेकिन जरूर बन लेगा, यहाँ पे जरूर इसकी फॉर्मेशन हो जाएगी 1,2 डाइक्लोरोइथेन व्हेन
methyl chloride reacts with chlorine, there is the formation of dichloromethane. Also in minor quantity there is the formation of 1,2-dichloroethane. ये minor quantity में यहाँ पे इसकी formation हो जाती है. This is the mechanism when methyl chloride reacts with chlorine. अब mechanism when dichloromethane reacts with chlorine, chloroform is formed. सेम मैकेनिज्म यहाँ पे भी है. इनिशिएशन स्टेप में सीआर रेडिकल की फॉर्मेशन हो जाएगी. उसके बाद प्रोपेगेशन के फर्स्ट स्टेप में डाइक्लोरोमीथेन ब्रेक डाउन हो जाएगा विद द हेल्प ऑफ सीआर रेडिकल. यहाँ पे एक एच रेडिकल बाहर निकलेगा और CHCl2 रेडिकल की फॉर्मेशन हो जाएगी. दूसरे स्टेप में CHCl2 रेडिकल क्लोरीन मॉलिक्यूल को ब्रेक कर लेगा और CHCl3 की फॉर्मेशन हो जाएगी और उसके साथ साथ क्लोरीन रेडिकल. फिर से वो क्लोरीन रेडिकल डाइक्लोरोमीथेन पे अटैक कर लेगा और उसका रेडिकल बनाएगा. उसका रेडिकल क्लोरीन मॉलिक्यूल पे अटैक कर लेगा और क्लोरीन रेडिकल की फॉर्मेशन हो जाएगी. टर्मिनेशन स्टेप में जितने भी रेडिकल्स बन गए हैं या तो एक दूसरे के साथ रिएक्ट कर पाएंगे या तो शाबाश खुद के साथ रिएक्ट कर लेंगे. आर यू गेटिंग माय पॉइंट? आफ्टर दैट CHCl3 Cl2 के साथ यहाँ पे भी 3 स्टेप्स, इनिशिएशन, प्रोपगेशन एंड टर्मिनेशन. देख लीजिए यहाँ पे ये जो प्रोडक्ट बनता है यहाँ पे माइनर क्वांटिटी में, यहाँ पे देख लीजिए कौन सा माइनर क्वांटिटी में, यहाँ पे भी देख लीजिए कौन सा माइनर क्वांटिटी में प्रोडक्ट की पॉसिबिलिटी हो सकती है. ये किसी एंट्रेंस एग्जामिनेशन में पूछा जाएगा. लेकिन याद रख लीजिए यहाँ पे देख लीजिए प्रोपगेशन स्टेप किस तरह से होता है. इनिशिएशन में क्लोरीन मॉलिक्यूल हर किसी जगह ब्रेक डाउन हो जाएगा, क्लोरीन रेडिकल की फॉर्मेशन हो जाती है. और टर्मिनेशन स्टेप में भी इतना ही देखना है जितने फ्री रेडिकल्स बन गए हैं या तो एक दूसरे के साथ रिएक्ट कर पाएंगे. अगर 2 रिएक्ट बन गए हैं तो या तो एक दूसरे के साथ या तो खुद के साथ. और वहां पे देख लीजिए कौन कौन से प्रोडक्ट्स की फॉर्मेशन हो जाएगी. डियर स्टूडेंट्स, दिस इज द मैकेनिज्म ऑफ क्लोरीनेशन ऑफ या हेलोजिनेशन ऑफ मीथेन. इन अदर वर्ड्स यहाँ पे हम किसकी प्रिपरेशन कर रहे हैं? एल्काइल हैलाइड की. कहां से? एल्केन से. ये मैकेनिज्म है इसका फ्री रेडिकल मैकेनिज्म. किस तरह से हमने मीथेन से मिथाइल क्लोराइड या मिथाइल क्लोराइड के साथ विद रेस्पेक्ट टू मिथाइल क्लोराइड फर्दर क्लोराइड की फॉर्मेशन हो जाती है. लेकिन मैंने पहले ही कहा कि दिस इज नॉट द एफिशिएंट मेथड फॉर द प्रिपरेशन ऑफ एल्काइल हैलाइड बिकॉज वैरायटी ऑफ प्रोडक्ट्स आर फॉर्मड, डिफरेंट प्रोडक्ट्स आर फॉर्मड एंड इट बिकम्स डिफिकल्ट to separate these very products because their boiling points, there is not any difference between the boiling points of these very products. शाबाश. ये mechanism. Now देख लीजिए dear students, this is the chlorination of methane. This is the chlorination of methane. और यहाँ पे मैंने फ्री रेडिकल मैकेनिज्म भी दिखाया. सेम इज द केस अगर हम इथेन लेंगे. इसी तरह से मैकेनिज्म, इनिशिएशन, प्रोपगेशन एंड टर्मिनेशन. फॉर एग्जांपल मेरे पास C2H6 है, मैंने Cl2 के साथ उसको रिएक्ट कराया. यहाँ पे C2H5Cl प्लस HCl की फॉर्मेशन हो जाएगी. उसके बाद यहाँ पे Cl2 मैकेनिज्म सेम है, C2H4Cl2 प्लस HCl. इसके साथ Cl2, यहाँ पे C2H3Cl3. हर एक स्टेप में Cl रेडिकल रिप्लेसेस या सब्स्टिट्यूट्स H रेडिकल. Cl radical substitutes H radical. That is why this is an example of free radical substitution reaction. एक free radical ने दूसरे free radical को substitute किया. यहाँ पे Cl2 को Cl2 के साथ रिएक्ट कराया. यहाँ का Cl रेडिकल यहाँ के H रेडिकल को रिप्लेस कर लेगा. यहाँ पे C2H3Cl3 और Cl2 के साथ यहाँ पे HCl की भी फॉर्मेशन हो जाती है. क्योंकि ये Cl और इसका H डॉट है Cl2. नाउ यहाँ पे H रेडिकल मीन्स C2H2Cl4 और उसके साथ साथ HCl. नाउ ये Cl2 के साथ C2HC, यहाँ पे C2HCl5 प्लस HCl.
फिर से यहाँ पे Cl2 के साथ ये यहाँ पे मैं लिखूंगा HCl है, C2HCl5 Cl2 के साथ मीन्स C2Cl6 प्लस HCl, C2Cl6 शाबाश। रिमेंबर इट, हर एक हाइड्रोजन एटम को ये रिप्लेस कर लेगा कौन, क्लोरीन। मैकेनिज्म सेम है यहां पे भी, जिस तरह से वहां पे क्लोरीनेशन ऑफ मीथेन में आपने डिस्कस किया सेम, लेकिन याद रख लीजिए इतना क्यों मैंने यहाँ पे दिखाया, साइड प्रोडक्ट जो आखिर में माइनर प्रोडक्ट की फॉर्मेशन होगी उसी पे क्वेश्चन पूछा जाता है। दैट इज वाई कि प्रोपगेशन स्टेप आप लोगों को करना आना चाहिए। होता क्या है प्रोपगेशन स्टेप में, फर्स्ट स्टेप में क्लोरीन रेडिकल की फॉर्मेशन हो जाएगी, उसके बाद प्रोपगेशन के फर्स्ट स्टेप में ये एल्केन पे अटैक करता है, वहां से H रेडिकल को बाहर निकालता है और Cl रेडिकल के साथ रिएक्ट करता है और एल्केन रेडिकल की फॉर्मेशन हो जाती है प्रोपगेशन के फर्स्ट स्टेप में। उसके बाद जो एल्केन रेडिकल फर्स्ट बन जाता है, एल्केन का रेडिकल बन जाता है, वो क्लोरीन मॉलिक्यूल को ब्रेक करता है और क्लोरीन रेडिकल की फॉर्मेशन हो जाती है। These are the two important steps of propagation. After that, propagation की जो दो स्टेप्स है, फ्री रेडिकल की फॉर्मेशन हो गई है, वही फ्री रेडिकल्स या तो एक दूसरे के साथ रिएक्ट कर पाएंगे या खुद के साथ रिएक्ट कर पाएंगे। वहां पे देखना है कि कौन माइनर क्वांटिटी में प्रोडक्ट, कौन कौन सा प्रोडक्ट बन जाएगा टर्मिनेशन स्टेप में। शाबाश। These are the variety of products which are formed when ethane is treated with chlorine. When ethane is treated with chlorine. शाबाश। इनका मैकेनिज्म आप खुद देख लीजिए, जिस तरह से क्लोरीनेशन ऑफ मीथेन में मैकेनिज्म दिखाया था उसी तरह से C2H5Cl2 के साथ वही उसी तरह से मैकेनिज्म, C2H4Cl2 के साथ उसी तरह से मैकेनिज्म, C2H3Cl3 Cl2 के साथ मैकेनिज्म कंप्लीटली सेम है, लेकिन देखना है कि टर्मिनेशन स्टेप में कौन कौन से प्रोडक्ट्स की फॉर्मेशन हो जाती है। शाबाश। नाउ देख लीजिए बेटा, यहां पे मैंने कहा हम एक साथ तीन कॉन्सेप्ट्स डिस्कस कर रहे हैं, तीन टॉपिक्स डिस्कस कर रहे हैं। एक तो प्रिपरेशन ऑफ एल्काइल हैलाइड्स फ्रॉम एल्केन्स हमने देख लिया, मैकेनिज्म भी देख लिया कि मीथेन को हम क्लोरीन के साथ ट्रीट कराएंगे तो मिथाइल क्लोराइड की फॉर्मेशन हो जाती है। और मैंने ये भी कहा कि दिस इज नॉट द एफिशिएंट मेथड फॉर द प्रिपरेशन ऑफ एल्काइल हैलाइड्स, क्योंकि वैरायटी ऑफ प्रोडक्ट्स आर फॉर्म्ड। लैब में ये इतना ज्यादा यूज नहीं होता है, लेकिन इंडस्ट्रियल यूज है। इंडस्ट्रियल यूज में क्या, व्हाट वी विल डू दियर, वहां पे कंट्रोल्ड क्लोरीनेशन हम कराते हैं। कंट्रोल्ड क्लोरीनेशन का मतलब है हम क्लोरीन फॉर एग्जांपल एक ही इक्विवेलेंट, एक ही मॉलिक्यूल को लेके, फॉर एग्जांपल वी विल टेक CH4 प्लस Cl2 फॉर एग्जांपल, ये एक ही मॉलिक्यूल है, एट दैट वेरी टाइम सिर्फ CH3Cl प्लस HCl की फॉर्मेशन हो जाएगी। जो मैकेनिज्म है वही सिमिलर है, लेकिन CH3Cl प्लस HCl की फॉर्मेशन हो जाएगी। शाबाश। दिस इज द क्लोरीनेशन। शाबाश। नाउ डियर स्टूडेंट्स, रिमेंबर दैट हेलोजेन्स, हेलोजेन्स में Cl2 ही नहीं आता है, देयर इज F2, देयर इज Cl2, देयर इज Br2, देयर इज I2। रिमेंबर दैट द रिएक्टिविटी ऑफ हेलोजेन्स, रिएक्टिविटी ऑफ हेलोजेन्स, रिएक्टिविटी ऑर्डर, मैं यहां पे लिखूंगा ऑर्डर ऑफ हेलोजेन्स। इट इज F2 is more reactive than Cl2, which in turn is more reactive than Br2, and I2 सबसे कम रिएक्टिव है। F2, Cl2, Br2, I2 ये रिएक्टिविटी ऑर्डर है, ये दिस इज द रिएक्टिविटी ऑर्डर है। रिएक्टिविटी डिक्रीजेस फ्रॉम F2 to Cl2, I2 सबसे कम रिएक्टिव, दिस इज लेस रिएक्टिव या लीस्ट रिएक्टिव, दिस इज मोर रिएक्टिव, दिस इज मोर रिएक्टिव। नाउ यहां पे देख लीजिए, फॉर एग्जांपल F2 में F सिंगल बॉन्ड F होता है, Cl में Cl सिंगल बॉन्ड Cl होता है। रिमेंबर दैट इफ वी हैव टू ब्रेक F सिंगल बॉन्ड F, F सिंगल बॉन्ड F या Cl सिंगल बॉन्ड Cl,
या Br सिंगल बॉन्ड Br या I सिंगल बॉन्ड I। यहां पे क्या होता है, F एंड F के बीच में जो सिंगल बॉन्ड है, रिमेंबर दैट हम यही समझेंगे कि यहां पे अगर हमें इसको ब्रेक करना होगा तो वी विल यूज द टर्म बॉन्ड डिसोसिएशन एनर्जी, amount of energy required to break that very particular bond. Remember that bond dissociation energy as it is Cl2 F2 Br2 I2 means आयोडीन का जो कोवेलेंट Cl का जो कोवेलेंट बॉन्ड होगा उसको ब्रेक करने में हमें ज्यादा एनर्जी की जरूरत पड़ जाएगी एज कंपेयर टू F2। व्हाई? रिमेंबर दैट जो F और F के बीच में बॉन्ड है, फ्लोरीन के आउटर शेल में कितने इलेक्ट्रॉन्स होते हैं? 7। उसका जो साइज होता है बहुत कम होता है। साइज जो उसका हो क्लोरीन का है वो बहुत कम है, उसके कम साइज में ज्यादा इलेक्ट्रॉन्स हैं। दैट इज व्हाई देयर इज इलेक्ट्रॉन रिपल्शन। देयर इज व्हेन द बॉन्ड इज फॉर्मड बिटवीन F एंड F, वहां पे जब ये एक दूसरे के नजदीक आ जाएंगे देयर इज इलेक्ट्रॉन रिपल्शन, और ये बॉन्ड होगा ये वीक होगा एज कंपेयर टू Cl सिंगल बॉन्ड Cl। दैट इज व्हाई इसकी बॉन्ड डिस्ट्रीब्यूशन एनर्जी कम है एज कंपेयर टू Cl2। दिस इज द रीजन। शाबाश, ये बॉन्ड डिस्ट्रीब्यूशन एनर्जी ऑर्डर है, लेकिन रिएक्टिविटी ऑर्डर ये है F2 greater than Cl2 which in turn is greater than Br2 which in turn is greater than I2। शाबाश, this is the reactivity order and this is bond dissociation energy order। now आप लोग समझ रहे होंगे कि आपने सर इतना दिखाया when CH4 reacts with Cl2 there is the formation of CH3Cl। why not Br2, why not I2 and why not F2? yes, we are in a position to prepare alkyl fluorides, we are in a position to prepare alkyl bromides, we are in a position to prepare alkyl iodides। यहाँ पे मैं दिखाऊंगा हमने alkyl chloride किस तरह से prepare किया। यहाँ पे मैंने आप लोगों को दिखाया कि क्लोरिनेशन ऑफ मीथेन हमने कराई या क्लोरिनेशन ऑफ इथेन। व्हाई नॉट फ्लोरिनेशन ऑफ मीथेन, व्हाई नॉट ब्रोमिनेशन ऑफ मीथेन, व्हाई नॉट आयोडीनेशन ऑफ मीथेन। देख लीजिए डियर स्टूडेंट्स, हम फ्लोरीन आखिर में डिस्कस कर लेंगे। फर्स्ट ऑफ ऑल वी विल डिस्कस द ब्रोमिनेशन। जिस तरह से डियर स्टूडेंट्स वी विल से दैट CH4 plus Br2, yes there is the formation of CH3Br plus HBr। जिस तरह से क्लोरीन रिएक्ट कर पाता है उसी तरह से ब्रोमीन। शाबाश। नाउ अगर मीन जहां पे फर्दर ये रिएक्शन हो जाएगी, फिर से Br2 जिस तरह से मतलब CH2 Br2 उसके बाद CHBr3 उसके बाद CeBr3। नाउ अगर हमने आयोडीनेशन कराई CH4 plus I2, वहां पे CH3I plus HI। यहां पे क्या प्रॉब्लम है? रिमेंबर दैट डियर स्टूडेंट्स इन केस ऑफ क्लोरिनेशन वहां पे किसकी फॉर्मेशन हो जाती थी? HCl की। इन केस ऑफ ब्रोमिनेशन किसकी फॉर्मेशन हो जाएगी? HBr। इन केस ऑफ आयोडीनेशन HI। रिमेंबर दैट whenever we are moving from top to bottom in case of halogen acids of halogenous acidity increases मीन जो HI है वो मोर स्ट्रॉन्गर एसिड है देन HF। शाबाश। दैट मीन्स ये HI ज्यादा स्ट्रॉन्गर एसिड है, दैट मीन्स इट इज मोर रिड्यूसिंग, इट इज ए स्ट्रॉन्ग रिड्यूसिंग एजेंट is a substance which undergoes oxidation HI की ऑक्सीडेशन हो जाती है। किस तरह से? ये H को जब लूज कर लेगा, मतलब लॉस करता है H को, जब इसने लूज किया शाबाश, उस H को वापस ये CH3I एक्सेप्ट करता है और ये रिएक्शन रिवर्सिबल है। मींस HI reacts with CH3I, there is the formation of CH4 plus I2 because HI is a strong reducing agent. It loses H positive which is accepted by CH3 and ये रिएक्शन रिवर्सिबल है। मींस उस रिएक्शन को इरिवर्सिबल बनाने के लिए शाबाश
CH4 को जब हम I2 के साथ रिएक्ट कराते हैं हमें HiO3 या HNO3 की जरूरत पड़ जाती है, तभी ये रिएक्शन इरिवर्सिबल है। बिकॉज HI जो है इट रिएक्ट्स विद HiO3 हाइड्रो आयोडिक एसिड या नाइट्रिक एसिड के साथ रिएक्ट करता है। अगर हमने HiO3 मींस दिस इज एन ऑक्सीडाइजिंग एजेंट a substance which undergoes reduction, खुद की रिडक्शन I2 की HI की ये ऑक्सीडेशन कराएगा। HI की ये ऑक्सीड, रिमेंबर दैट, रिड्यूसिंग एजेंट खुद ऑक्सीडेशन दूसरे की रिडक्शन, खुद ऑक्सीडेशन दूसरे की रिडक्शन, ऑक्सीडाइजिंग एजेंट खुद रिडक्शन दूसरे की ऑक्सीडेशन। शाबाश, किसको ऑक्सीडाइज कर लेगा? HI को किस तरह से ऑक्सीडाइज कर लेगा? शाबाश, दिस इज 5 times। नाउ there is a formation of 3 times I2 plus 3 times water। यहां पे आयोडीन की फॉर्मेशन हो जाएगी। जितना जल्दी जो ही HI फॉर्म हो जाएगा, जब हमने मीथेन को आयोडीन के साथ ट्रीट किया और मिथाइल आयोडाइड की फॉर्मेशन हो जाती है, हाइड्रो आयोडिक एसिड जो ही बन जाता है, क्योंकि रिएक्शन में ऑलरेडी हाइड्रो आयोडिक एसिड है, वो इसको कन्वर्ट करता है आयोडीन एंड वाटर में, ताकि ये रिएक्शन इरिवर्सिबल बन जाए। और हमारा क्या मकसद है? अल्काइल आयोडाइड को प्रिपेयर करना है। आर यू गेटिंग माय पॉइंट? अगर हमने ये ऑक्सीडाइजिंग एजेंट यहाँ पे यूज नहीं किया या HNO3 यहाँ पे यूज नहीं किया, तो ये रिएक्शन रिवर्सिबल होगी। आर यू गेटिंग माय पॉइंट? दिस इज द केस ऑफ आयोडीनेशन ऑफ मीथेन। मैकेनिज्म सेम होगा, फ्री रेडिकल, क्लोरीन के बदले I2। नाउ विद रेस्पेक्ट टू ब्रोमिनेशन, जिस तरह से क्लोरिनेशन हो जाती है उसी तरह से ब्रोमिनेशन। नाउ फ्लोरिनेशन, देख लीजिए बेटा, आयोडीनेशन का मैंने आप लोगों को बताया कि अल्काइल आयोडाइड्स में प्रॉब्लम क्या है, किस तरह से हमें उस प्रॉब्लम को सॉल्व करना है। हमें एक ऑक्सीडाइजिंग एजेंट कौन, हाइड्रो आयोडिक एसिड या HNO3, वो रिएक्शन भी मैंने दिखाई, वहां पे आयोडीन और वाटर की फॉर्मेशन हो जाती है। शाबाश। नाउ विद रेस्पेक्ट टू फ्लोरिनेशन, शाबाश, सपोज हमने CH4 को F2 के साथ ट्रीट किया, यहां पे हम कह रहे हैं CH3F और HF की फॉर्मेशन हो जाएगी। लेकिन मैकेनिज्म में आप लोगों ने देख लिया बेटा, अगर हमने F2 को यूज किया तो सनलाइट किस पे पड़ लेगी? शाबाश डियर स्टूडेंट्स, वहां पे किसकी इनिशिएशन स्टेप में किसकी फॉर्मेशन हो जाएगी? F रेडिकल की। रिमेंबर दैट डियर स्टूडेंट्स, F रेडिकल ये बहुत ज्यादा रिएक्टिव है। आर यू गेटिंग माय पॉइंट? ये भी याद रख लीजिए डियर स्टूडेंट्स, जितना साइज में कम होगा फ्री रेडिकल, उतना ज्यादा वो रिएक्टिव हो जाता है, उतना ज्यादा ये रिएक्टिव हो जाता है। शाबाश। नाउ F2 भी ज्यादा रिएक्टिव है। F रेडिकल प्रोपगेशन स्टेप में जो ही CH3 रेडिकल के साथ रिएक्ट करता है और वो रिएक्शन एक्सोथर्मिक इन नेचर होती है। रिमेंबर दैट। ये मैं बताना भूल गया, इन केस ऑफ क्लोरिनेशन या इन केस ऑफ व्हाट वी कैन से आयोडीनेशन या इन केस ऑफ ब्रोमिनेशन, जो ही प्रोपगेशन स्टेप में रेडिकल्स रिएक्ट करते हैं, शाबाश, या टर्मिनेशन स्टेप में एक दूसरे के साथ रिएक्ट करते हैं, वहां पे जब रेडिकल्स की रिएक्शन हो जाती है, मींस बॉन्ड फॉर्मेशन हो जाती है, दैट इज एक्सोथर्मिक। वो एक्सोथर्मिक प्रोसेस होती है। हीट एनर्जी रिलीज होती है। लेकिन यहां पे क्या होता है, CH3 रेडिकल प्लस F सिंगल बॉन्ड F के साथ सेकंड स्टेप में रिएक्ट कर लेगा, प्रोपगेशन के सेकंड स्टेप में। फर्स्ट स्टेप में क्या हो जाएगा, CH4 प्लस F रेडिकल गिव्स CH3 रेडिकल प्लस HF, ये फर्स्ट स्टेप ऑफ प्रोपगेशन होगा। उसके बाद ये CH3 रेडिकल प्लस F सिंगल बॉन्ड F, it will give शाबाश CH3F प्लस F रेडिकल। ये F रेडिकल जब टर्मिनेशन स्टेप होगा, रिमेंबर दैट, हालांकि Cl रेडिकल के बदले मैंने F रेडिकल ले लिया, बस बाकी जो मैकेनिज्म है वो सेम है एज कंपेयर टू क्लोरिनेशन। रिमेंबर दैट
F radical plus F radical gives F2. और एक पॉसिबिलिटी है CH3 radical plus F radical, it gives CH3CF. It has been found that this very termination step when CH3 radical react, students यहाँ पे हमने देख लिया CH3 डॉट जब F डॉट के साथ रिएक्ट करता है वहां पे जो रिएक्शन है वो एक्सोथर्मिक इन नेचर है और इतनी ज्यादा एनर्जी रिलीज होती है कि ब्लास्ट होने का खतरा रहता है. That is why this is not the efficient method for the direct preparation of alkyl fluorides from alkanes or we can say from methane. क्योंकि जो टर्मिनेशन स्टेप का मिथाइल रेडिकल फ्लोरीन रेडिकल के साथ रिएक्ट करता है और अल्काइल फ्लोराइड्स की फॉर्मेशन होती है वहां पे एनर्जी इतनी ज्यादा रिलीज होती है कि ब्लास्ट होने का खतरा रहता है. दैट्स व्हाई दिस वेरी मेथड इज नॉट द एफिशिएंट मेथड फॉर द डायरेक्ट preparation of alkyl fluorides. There is an indirect method for the preparation of alkyl fluorides, that is when alkyl chloride या bromide या iodide is treated with Hg2F2 या AgF या SbF3 या AsF3 के साथ ट्रीट करते हैं. वहां पे क्या होता है एक न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन होती है वहां पे Hg2Cl2 यहाँ पे 2 टाइम्स दिस इज 2 टाइम्स. व्हेन अल्काइल क्लोराइड्स या अल्काइल ब्रोमाइड हम ले सकते हैं यहाँ पे या अल्काइल आयोडाइड जब मर्क्यूरस फ्लोराइड के साथ ट्रीट कराएंगे एट दैट वेरी टाइम न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन होगी क्लोरीन को सब्स्टिट्यूट कर लेगा एंड दिस इज एन इंपॉर्टेंट नेम्ड रिएक्शन नोन एज स्वार्ट्स रिएक्शन. यहां पे क्या होता है हेलोजन एक्सचेंज. एक हेलोजन दूसरे हेलोजन को एक्सचेंज करता है सब्स्टिट्यूट करता है फ्लोरीन क्लोरीन को. दैट इज द इनडायरेक्ट मेथड फॉर द प्रिपरेशन ऑफ अल्काइल फ्लोराइड्स. डायरेक्ट से हम इजीली प्रिपेयर नहीं कर सकते हैं क्योंकि डियर स्टूडेंट्स वहां पे आप लोगों ने देख लिया एक फ्री रेडिकल मैकेनिज्म होता है. जब हम डायरेक्ट फ्लोरिनेशन एल्केन की कराएंगे वहां पे एक्सोथर्मिक रिएक्शन होती है वहां पे बहुत ज्यादा एनर्जी रिलीज होती है वहां पे एक एक्सप्लोजन होने का खतरा रहता है. दैट्स व्हाई डायरेक्ट फ्लोरिनेशन इज नॉट पॉसिबल. हाँ डायरेक्ट फ्लोरिनेशन इट हैज बीन फाउंड दैट हम डायरेक्ट फ्लोरिनेशन भी करा सकते हैं लेकिन जब हम किसी इनर्ट गैस को यूज कर लेंगे. इनर्ट गैस फॉर एग्जाम्पल N2 या AR2 एर्गान गैस. शाबाश. अगर हमने एर्गान यूज किया और मीथेन को ट्रीट किया फ्लोरीन के साथ एक इनर्ट गैस यूज किया तब डायरेक्ट फ्लोरिनेशन हो सकती है. दिस इज ऑल अबाउट द प्रिपरेशन ऑफ एल्काइल हैलाइड्स या हेलोजिनेशन ऑफ एल्केन्स with it is free radical mechanism. फ्री रेडिकल मैकेनिज्म पूरा मैंने दिखाया हर एक रिएक्शन का. जिस तरह से क्लोरिनेशन ऑफ मीथेन में मैंने कहा कि अल्काइल क्लोराइड उसके बाद अल्काइल क्लोराइड की मैंने क्लोरिनेशन कराई और डाइक्लोरोमीथेन सेम मैकेनिज्म. उसी तरह से क्लोरोफार्म को हम प्रिपेयर कर सकते हैं डाइक्लोरोमीथेन में मीथेन से सेम मैकेनिज्म. 2 प्रोपेगेशन स्टेप्स एक इनिशिएशन स्टेप 2-3 टर्मिनेशन स्टेप्स. लेकिन ध्यान दे दीजिए माइनर क्वांटिटी में कौन प्रोडक्ट बन जाएगा. 10 ये यहाँ पे आज मैंने सिंपल एग्जांपल्स यहाँ पे आप लोगों को दिखाई with respect to fluorination, chlorination या with respect to chlorination of alkane. उसके बाद हम एक और टॉपिक इसका सब टॉपिक डिस्कस कर लेंगे. वहां पे हम देखेंगे सिलेक्टिविटी एंड रिएक्टिविटी. वहां पे हम फ्लोरिनेशन भी कराएंगे क्लोरिनेशन भी कराएंगे ब्रोमिनेशन भी कराएंगे और आयोडिनेशन भी कराएंगे. लेकिन एल्केन जो होगा वो अब डिफरेंट होगा. अभी जो था वो मीथेन एंड ईथेन. उसके बाद हम डिफरेंट एल्केन्स लेंगे और देखेंगे कौन प्रोडक्ट कितनी क्वांटिटी में वहां पे फॉर्म होता है. इंपॉर्टेंट कंसेप्ट है. प्लीज वेट फॉर दैट वेरी कंसेप्ट, वेट फॉर दैट वेरी टॉपिक, वेट फॉर दैट वेरी लेक्चर. तब तक के लिए ऑल द वेरी बेस्ट.